Good morning, students. Let's do our next literature chapter, that is the imaginary adventures of Don Quixote. Once upon a time, in a province in Spain known as La Mancha, there lived a gentleman whose name was Quixada. He was 50 years old and had once been a great hunter. Quixada loves the tales of knights of yore and chivalry. After a while, he stopped hunting. He sold most of his land. He bought some more storybooks. He read and he dreamed. He dreamed most of the time about the knights of the Round Table. Then one day Quixada came up, and what some say was the strangest whim any man had ever had. This would be grand, this plan of Quixada's. हाँ जी बच्चे, ये स्टोरी है एक स्पेनिश जेंटलमैन की जिसका नेम है क्विजादा और वो ला मंचा में रहता है. वो 50 इयर्स ओल्ड है और एक बहुत अच्छा हंटर है. उसे राजाओं की कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ है. पुराने राजाओं की कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ है. और वो chivalry is the customs and the spirit of knighthood. जो sophistication से राजा रहते हैं वो उनको फॉलो करना चाहता है. आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद उसने हंटिंग को छोड़ दिया और अपनी सारी लैंड को बेच दिया और उस पैसे से उसने बहुत सारी स्टोरी बुक्स खरीदी. एंड ही रीड एंड ही ड्रीम्ड. वो सारा दिन बुक्स को पढ़ते और उनके सपने लेते. किसके? बादशाहों के सपने लेते, राजाओं की कहानियों में इमेजिन करते. तो एक दिन उनके अंदर एक स्ट्रेंज विम इज अ सडन एंड अनयूजुअल विश. एक अजीब सी इच्छा जागृत हुई. दिस वुड बी ग्रैंड, दिस प्लान ऑफ क्विजादा. और ये क्विजादा का ग्रैंड प्लान साबित हुई. ही डिस्क्लोज्ड, आई विल wear armor and carry my lance and will ride through the world seeking adventure like the knights of old. I will take vengeance upon those who hurt the poor and the weak. I will rescue damsels from dragons' teeth. Each day I will perform a daring deed. I would meet danger and would overcome it. Finally, as a reward for my heroism, I will become a knight of the empire, he continued. उसने ये डिस्क्लोज किया कि वो एक आर्मर को डालेगा. और लैंस होता है बच्चे एक भाला जिसको बोल देते हैं. एक वेपन होता है जो आगे से शार्प होता है और पीछे से वुडन हैंडल होता है उसका. और वो कहते हैं कि मैं एडवेंचर करते हुए पूरे दुनिया में घूमूंगा. और जैसे कि पुराने राजा जो लोग गरीब और कमज़ोर लोगों को हर्ट करते हैं, मैं उनका बदला लूँगा. और डैमसेल्स फ्रॉम ड्रैगन्स मीन्स गुंडों से यंग वुमेन को बचाऊँगा. एंड ईच डे आई विल परफॉर्म अ डेयरिंग डीड. और मैं एक डेयरिंग डीड करूँगा. रोज़ एक नया एडवेंचर करूँगा जिससे मैं खतरों का सामना करूँगा. और मैं एक उस हीरोइज़म के लिए मुझे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, एक प्राइज़ दिया जाएगा और मैं भी एक एम्पायर का राजा बन जाऊँगा. He dragged out the old armor and polished it until it gleamed bright as the sun. Then he sat down to think. He would need a strong steed to ride into the battle. Every knight has a fine horse. He went to the stable. He whistled his old carriage horse. The poor creature was ragged and bony, but to
Quezada, he seemed the noblest of all creatures. For 4 days he thought about what he might name his noble horse. At last he cried up to the sun, Rosinante. Rosinante is my horse name. Now he said, Rosinante, I will need a proper name for myself. He tried many names, but none seemed fit for a knight as grand as he. And then it came to him, my name will be Don Quixote, he said, sitting straight up in bed and remembering that every knight of old attached the name of his kingdom to his own name. He added, De la Mancha. Don Quixote de la Mancha is my name. So Don Quixote de la Mancha had a name and a horse and a gleaming armor. Now he needed a lady to whom he could devote his services. हाँ जी, तो फिर बच्चे उसने क्या किया कि अपनी एक पुरानी आर्मर को निकाला, उसको अच्छे से साफ़ किया जब तक वो चमकने नहीं लगी सन की तरह। फिर वो बैठकर सोचने लगा कि हर राजा के पास एक घोड़ा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग घोड़ा होता है, तो वो अपने स्टेबल में जाता है, अपने तबेले में जाता है और अपने पुराने कैरेज, जो कैरेज लेकर हॉर्सेस जाते हैं, उनको निकालता है, उनको विसल करके बुलाता है। तो वो पुअर क्रिएचर उसमें से एक ओल्ड एंड टायर्ड हॉर्स वहाँ आ जाता है। तो वो सोचता है, उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो सोचता है कि अब मेरे हॉर्स का नेम क्या होगा। तो वो सोच कर उसे एक नेम याद आता है जो कि है रोज़िनेंट। वो अपने हॉर्स को नेम देता है रोज़िनेंट। अब वो कहता है कि हर राजा का एक अच्छा सा नेम होता है, तो वो अपने लिए भी एक अच्छा नेम सोचता है। तो सोचते सोचते वो अपने आप को बोलता है डॉन क्विक्सोटे। फिर से वो बेड पे बैठते हुए सोचता है कि हर राजा के साथ उसकी स्टेट का नेम जुड़ा होता है। तो वो फिर अपने लिए दोबारा से वो नेम सोचता है, तो वो अपना नेम बताता है, डॉन क्विक्सोटे डी ला मंचा विल बी हिज नेम। तो अब उसके पास एक चमकती तेज धार वाली आर्मर थी, और बच्चे अब वो कहता है कि मेरे पास एक चमकती हुई आर्मर है, एक कवच है, एक घोड़ा है और एक अच्छा सा नेम है नाइट वाला। लेकिन फिर वो सोचता है कि अब उसे अपने लिए एक लेडी की ज़रूरत है, जिसे हम दासी कह सकते हैं, कि ऐसी लेडी जो उसके लिए काम करे और फेथफुल हो। Dulcinea, he sighed, will be the name of honored lady, and he danced with joy through the fields. फिर उसने उस लेडी का भी नेम सोच लिया, that is Dulcinea। तो वो जहाँ वो बैठकर ये सब कुछ सोच रहा था, वहीं पर वो खुशी से नाचने लगा। I need is a squire. Every knight has a squire who serves him faithfully during his grand adventures, he declared. He convinced his neighbor Sancho Panza to be his squire. He promised Sancho to entitle him as the governor of an island. Don Quixote set off on Rocinante's back in search of adventure. Sancho Panza also climbed upon his donkey and began to trot alongside Don Quixote. अब उसने सोचा कि अब उसने उस लेडी का नेम भी सोच लिया बच्चे। फिर अब उसने क्या किया, उसने उसे कहा कि अब मुझे एक स्क्वायर की ज़रूरत है, दैट इज़ जिससे किंग अपना एडवाइस लेते हैं, दैट इज़ उनको हम वज़ीर भी बोल सकते हैं। तो उसने अपने पड़ोसी को, अपने नेबर को, सैंचो पैंजा को एक स्क्वायर बनने के लिए एग्री करवा लिया
और उसे बोला कि जैसे ही वो कुछ अच्छा करेगा उसके लिए, तो फिर वो उसे उस आइलैंड का गवर्नर बना दिया जाएगा। और इसी तरह डॉन किहोटे रोज़ेनेट पर बैठकर एक एडवेंचर जर्नी के लिए निकल पड़े और उनके साथ थे सैंचो पैंजा, जो अपने डोंकी पर बैठकर उनके साथ साथ जाने लगे। As they rode along, they came across a couple of monks wearing hoods, carrying umbrellas, and riding large mules. Behind the monks was a coach occupied by a lady and her maid on their way to Seville. The coach was accompanied by 4 or 5 mounted men and 2 mule drivers. Don Quixote, seeing the hooded monks, believed them to be sorcerers. Fortune guides our path, Sancho, Quixote cried. These sorcerers are in the process of carrying off a grand princess. I shall protect her. The princess will reward us for saving her, and we shall be rich. Sancho, on seeing reality, advised Don Quixote not to let the devil deceive him, but Don Quixote paid no attention and claimed, Sancho, you are only a squire, you know nothing about knightly adventures. अब वो जा रहे थे जब अपनी जर्नी पर, तब उन्होंने रास्ते में कुछ मॉन्क्स को देखा, कुछ सन्यासी लोगों को देखा। उन्होंने हुड डाल रखी थी अपने सिर के ऊपर, जो बच्चे टी शर्ट के पीछे एक कैप बनी होती है, उसको हुड बोलते हैं। और कुछ लोगों ने अम्ब्रेलास पकड़े हुए थे और वो बहुत बड़े बड़े म्यूल्स पे यानी कि खच्चरों पर जा रहे थे। और उनके पीछे एक गाड़ी थी, कोचेस गाड़ी, घोड़ा गाड़ी थी, जिसमें एक लेडी बैठी हुई थी और उसकी सर्वेंट थी। तो वो सेविल की तरफ जा रहे थे। तो डॉन क्विक्सोट ने उन मॉन्क को ऐसे जस्टिफाई किया कि जैसे वो ब्लैक मैजिक जानते होते हैं और वो इविल स्पिरिट से प्रिंसेस को पकड़कर कहीं और लेकर जा रहे हैं। और उसने अपने स्क्वायर से कहा, दिस वुड बी अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अस व्हेन वी विल सेव प्रिंसेस एंड शी विल रिवॉर्ड us and we will become rich. But Sancho ने उसे एडवाइस दिया कि मुझे नहीं लगता कि हम इन शैतानों को धोखा दे सकते हैं। डॉन क्विक्सोट ने उसकी एडवाइस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि तुम क्या जानो राजाओं के एडवेंचर्स के बारे में। Don Quixote planted himself in the middle of the road and shouted, insolent sorcerers, how dare you imprison the princess? Release her right now or die. One of the monks tried to explain the true nature of their journey. Don Quixote could not accept the reality and charged the first monk, who fell off his donkey. His companion fled, and while Don Quixote moved on to the coach, Sancho began to strip their wagon. Don Quixote told the lady in the coach that he had vanquished her captors. Your Excellency, in return, I would want you to travel to El Toboso to tell Dulcinea of my brave deed. One of the lady's attendants warned Don Quixote, stay away from Madam, you fleety man. Don Quixote insulted the man and this ensued a fight. अब डॉन क्विक्सोट
उन लोगों के रास्ते में जाकर मिडल ऑफ द रोड में खड़े हो गए और उन्होंने बहुत रूडली उन मॉन्क्स से बात की जिनको वो मैन विद मैजिक पावर्स समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी ये हिम्मत भी कैसे हुई कि आपने प्रिंसेस को पकड़ा, अभी इसको आज़ाद करो या फिर मर जाओ। अब एक मॉन्क ने, एक सन्यासी संत ने उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वाई दे आर गोइंग टू दिस जर्नी, पर डॉन क्विक्सोट किसी तरह की भी रियलिटी फेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने फर्स्ट मॉन्क जो उनके रास्ते में आया था उसको नीचे गिरा दिया और उसका साथी जो था वो भाग गया और सैंचो ने उनके लिए रास्ता क्लियर किया, स्ट्रिप देयर वैगन के घोड़ा गाड़ियाँ हटाई। डॉन क्विक्सोट told the lady in the coach that he had vanquished her captors, कि उसने उस प्रिंसेस को, जो लेडी थी उस कोच में बैठी, उसको कहा कि जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया है उनको उसने हरा दिया है और तुम मेरे साथ एल टोबोसो में जाकर दुल्सिनिया को मेरी ब्रेव कहानियों के बारे में बताओ। One of the ladies attendant warned Don Quixote stay away from madam. तो उसकी जो एक मेड थी प्रिंसेस की, उसने वार्न किया डॉन क्विक्सोट को कि तुम मैडम से दूर रहो। डॉन क्विक्सोट ने एक और आदमी की इंसल्ट की, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी आपस में बहुत लड़ाई हुई। Don Quixote had the advantage of riding a horse while the servant was on a mule and had only cushion for a shield. Don Quixote lost half of his helmet and an ear in the battle, but soundly thrashed the servant who was bleeding from the nose, mouth, and ears. The terrified ladies agreed to tell Dulcinea of Don Quixote's deeds if he would spare the life of the attendant. They agreed to it, but they had no idea of who Dulcinea was. Don Quixote and Sancho went on their way. Sancho asked, "Will the success of this battle entitle you to governorship?" To which Don Quixote replied, "This was too trivial a battle for such a prize." अब क्या हुआ कि डॉन क्विक्सोट जिनके साथ लड़ाई कर रहा था वो डंकी पे सवार थे और उसके पास ये एक एडवांटेज था कि वो हॉर्स पर राइडिंग कर रहा था और उन लोगों ने कुशन की शील्ड डाली हुई थी, जबकि डॉन क्विक्सोट ने अपने ऊपर आर्मर डाला हुआ था। लेकिन इस फाइट में डॉन क्विक्सोट का ईयर कट हो जाता है, जबकि जो सर्वेंट्स थे लेडी ऑफ द कोच के साथ, उनके नोज़, माउथ और ईयर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और वो लेडीज़ इतना डर जाती हैं कि वो इस बात पे एग्री हो जाती हैं कि अगर डॉन क्विक्सोट उनके अटेंडेंट्स की लाइफ सेव कर देता है तो वो दुल्सिनिया को सब कुछ उसकी ब्रेवरी की डीड्स के बारे में बता देंगी। लेकिन डॉन क्विक्सोट और सैंचो आपस में बात करते हैं और सैंचो कहता है कि क्या गवर्नरशिप उसे मिलेगी इस फाइट के बाद, इस बैटल के बाद। तो डॉन क्विक्सोट उसको रिप्लाई करते हैं कि दिस वॉज टू ट्रिवियल बैटल, ये बहुत एक मामूली सी बैटल थी, इतने बड़ी प्राइज़ के लिए ये बहुत मामूली बैटल है, तुम्हें कोई प्राइज़ नहीं मिलेगा। बिकॉज डॉन क्विक्सोट injured ear was still bleeding, Sancho put ointment and lint on it. Don Quixote said, "The balsam of great
firebrace can heal any serious wounds. I know its recipe but don't have the ingredients. Hearing that the magic balsam can put body parts back together, Sancho asked for the recipe so that he could sell it. Don Quixote refused to give it to him, and the two had a supper of bread and onions. As darkness fell, they slept beneath a tree. In the meanwhile, Rosinante broke its leash and ran away. It accidentally ran over a horse driver and injured him. The other horse riders confined Rosinante, thinking it to be a mad horse. Rosinante, here I come, Don Quixote, the defender of the weak, he shouted, and went to the battle against 20 horse drivers on Rosinante's behalf. He was badly bitten by him. This time Sancho was also bitten. हाँ जी, अब डॉन क्विक्सोटे इंजर्ड हो चुके हैं, उनके ईयर से ब्लीडिंग हो रही है, तो सेंचो वहाँ एक ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं। तो डॉन क्विक्सोटे उन्हें कहते हैं कि मुझे एक ऐसे फाइब्रा किंग की रेसिपी के बारे में, बाम की रेसिपी के बारे में पता है कि उसको लगाते ही जो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कट हो चुका है वो दोबारा आ जाएगा, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास वो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो सेंचो उनसे पूछता है कि व्हाट इज़ द रेसिपी, क्योंकि वो उसे बेचना चाहता है, लेकिन डॉन क्विक्सोटे उसे बताने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और दोनों बैठकर डिनर करते हैं ब्रेड एंड अनियंस का। जैसे ही रात हो जाती है तो वो एक ट्री के नीचे सो जाते हैं। तो इतने में रोज़िनेंट की, जिससे उन्होंने उसको बांध के रखा होता है, जो रस्सी होती है वो खुल जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो रास्ते में कुछ हॉर्स ड्राइवर के ऊपर से गुज़र जाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो समझते हैं कि ये कोई पागल हॉर्स है और वो सब मिलकर, अराउंड 20 ड्राइवर्स वर देयर, वो सब मिलकर उसे पकड़ते हैं। तो डॉन क्विक्सोटे भी वहाँ आ जाते हैं, जो कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं। तो वो रोज़िनेंट के बिहाव पर उनसे फाइट करते हैं। तो वो टू पर्सन्स थे और वो 20 हॉर्स ड्राइवर्स थे। तो वो दोनों को बहुत अच्छी तरह से मार देते हैं। Badly bruised, Quijito finally decided to prepare magical balsam. He asked Sancho to get the ingredients for the magical balsams: oil, wine, salt, and rosemary. Don Quixote brewed the awful stuff, blessed it, filled a flask for the future use, and helped himself to a large drink of it. Immediately he was sick to his stomach and fell unconscious. 3 hours later, when he woke up, he was unaware of his bruises. Impressed, Sancho also wanted to try some of mysterious balsam, but unfortunately suffered cramps and nausea, ending in violent diarrhea and vomiting. अब बहुत बुरी तरह से डॉन क्विक्सोटे इंजर्ड हो चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रूज आए हैं, बहुत ज़्यादा कट आए हैं। तो वो फाइनली सोचते हैं कि मुझे वो मैजिकल बाम बना लेनी चाहिए। तो वो सेंचो को इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देते हैं: ऑयल, वाइन, सॉल्ट एंड रोज़मेरी, जिसको सेंचो कलेक्ट करता है और वो एक बहुत ऑफुल ब्लेस्ड मिक्सचर सा बना के एक फ्लास्क को फ्यूचर के लिए भी फिल कर लेते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में खुद पीकर
वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। 3 आवर्स लेटर, जब 3 घंटे बाद वो उठते हैं तो वो बिल्कुल अपने इंजर्ड वाउंड्स से अनअवेयर होते हैं। इम्प्रेस्ड सेंचो ऑल्सो वांटेड टू ट्राई, अब सेंचो भी उसको ट्राई करना चाहता है और अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो उसको पीता है उसे ज़बरदस्त डायरिया हो जाता है, उसको वॉमिटिंग्स लग जाती हैं और उसके स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो कुछ भी अच्छा करने जाते हैं तो उनके साथ उल्टा ही हो जाता है और वो खुद ही सफरर्स बन जाते हैं।